I'm Tanvi. Welcome to another guest episode of Pages and Beyond podcast show. Today, I'm thrilled to have Prerita Khandelwal, the face behind the book critics on Instagram. She is company secretary and into reading and storytelling. Hi, Prerita. Hi Tanvi, thank you so much for having me here. I'm super excited to be part of your podcast as a Oh, guest. that's great. That's great to know. So, before we dive into our conversation and tell the audience about the agenda, why don't you tell about yourself a little bit more, your reading journey and how you got into reading? Okay, as you just mentioned, I am a company secretary, of course, and I love my profession. But apart from being a company secretary, I am a hardcore रीडर लाइक मैं बचपन से बुक्स पढ़ रही हूँ ठीक है बट इन 2020 आई गेस इन 2015 जब लाइफ थोड़ी अनबैलेंस्ड हो गई और हैंडल नहीं हो रही थी चीज़ें तो आई री स्टार्टेड रीडिंग और उसके बाद से अब तक मैं पढ़ ही रही हूँ एंड नाउ आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट बुक्स ठीक है और दिस जर्नी ऑफ द बुक क्रिटिक्स इट स्टार्टेड इन 2019 एज अ जोक ठीक है Oh, सो आई हैव अ फ्रेंड हुज नेम इज कृष्णा एंड हम एग्जाम्स रिलेटेड बातें कर रहे थे when I was doing LLB ठीक है ऑल्दो हमें पढ़ना चाहिए था बट we were talking about books and Harry Potter and all of sudden he said कि यार तू खुद का कुछ क्यों नहीं स्टार्ट करती है एंड उस टाइम में ना मेरे को इतना कॉन्फिडेंस नहीं था मुझे लगा यार मुझसे नहीं होगा कैसे होगा एंड ऑल तो बोलता है कि मैं करवाता हूँ एंड इट वॉज ही हु नेम दिस पेज और इनिशियली उसने ही काफ़ी हेल्प करी कि क्या कंटेंट डालना है कैसे रिव्यू हम कर सकते हैं क्या एक पैटर्न मुझे लेके चलना चाहिए था तो या सो दिस इज स्टोरी अबाउट द बुक क्रिटिक्स और इसी रीजन की वजह से देर इज एस इन द बुक क्रिटिक्स लाइक बहुत लोग पूछते हैं इफ यू आर रनिंग इट अलोन व्हाई देर इज एस सो इट्स नॉट कम्प्लीटली माई मतलब मेरे दोस्त का भी है it's a collaborative या work. एग्जैक्टली ऑल्दो ही इज नॉट वर्किंग विद मी राइट नाउ क्योंकि ऑफ कोर्स लाइफ उसकी अपनी लाइफ है वो जयपुर रहता है मैं यहाँ गुड़गांव हूँ profession and everything but we are still good friends and it's everything I have it's mostly because of him क्योंकि the book critics ने बहुत कुछ दिया है मुझे yeah Oh, that's wonderful. And I have seen your journey for the past 2 years, I think now. yes So I can see whether it was joke or not, nobody can tell at this point of time seeing your Instagram. So people, today we are going to talk about mythological fiction as a reader from Prerita. So when we talk about mythology, so many sentiments and emotions are attached for the people. But today, mythological fiction is going to be unfolded with the lens of Prerita as a reader. So, Prerita, tell me, which was that first book that you picked up in mythological fiction? okay tell me now you have asked me specifically for mythological fiction so I started reading mythological fiction in around in like 2016 and my first mythological fiction was Immortals of Meluha by Okay. Amish Tripathi and it was that book which changed the way I used to look to mythology or it changed the way I used to look to Indian authors. Okay? And I fell in love with his writing. I fell in love with the mythological fiction genre. Or the book was given. I borrowed that book from one of my brother's friend. Yeah, so that's how things started. And this Immortals of Melua is my first book. First book. So, if I talk about like mythological fiction, बहुत ही vast है. So we see retelling and reimagination. So for you, when you think of mythological fiction, what do you long for? What is that one thing that keep you hooked, that calls you every time when you think of a book as mythological fiction? It's women's perspective. I prefer reading retellings of Mahabharat, Ramayana and other retellings from the perspective of women क्योंकि बचपन से ही ना हमने जो भी देखी है रामायण महाभारत जितनी भी पढ़ी है सुनी है वो सब आदमियों के पर्सपेक्टिव से सुनी है कि आदमी ने ऐसा किया वो किया ये युद्ध लड़े वो बट व्हाट अबाउट विमेन ठीक है सो इट्स दिस थिंग कि औरतों का क्या रहा कैसा रहा ये एक चीज है जो मुझे बहुत हुक करती है अभी इस जॉनरा में तो बेसिकली मैंने रिसेंटली फॉरेस्ट ऑफ एन्चैंटमेंट पढ़ी लाइक that was the first book that I read in mythological fiction, to be honest, and that's why I wanted to do this podcast so that people like me who don't have any idea how fun reading mythological fiction is, they get to know about it from someone who has been reading it since long. So when I was reading Forest of Enchantment,
I don't know whether everybody feels it. It was amusing. It made me laugh. I was giggling and I was wondering, अगर सीता इस टाइम की फीमेल होती तो कैसी होती? So do you also think of something when you are reading women perspective retellings or reimagination in mythological fiction? या ऑफ कोर्स तन्वी, और अभी जैसे आपने बोला अगर सीता इस टाइम पर होती तो कैसे होती, आई एम डेफिनेटली श्योर शी वुड बी डिसअपॉइंटेड with the men and the humanity, the way women are treated now, मतलब इतने सालों बाद भी, ठीक है, औरतों की कंडीशन तो वही है. तो व्हाट डू यू थिंक, मतलब एज अ वुमेन, क्या ये जो दो बड़े एपिक हमारी इंडियन माइथोलॉजी के हैं, महाभारत एंड रामायण, डू यू थिंक दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वुमेन कंडीशनिंग इन नो, आवर? एब्सोल्युटली नॉट तन्वी, बिल्कुल भी नहीं. इट्स गेम ऑफ इंटरप्रिटेशन, ठीक है. रामायण हुई, महाभारत हुई, अब हम लोगों ने तो उनको देखा नहीं, वी आर रीडिंग इट. जो बुक्स हम पढ़ रहे हैं दे आर रिटन बाय मेन, ठीक है. तो वो उन्होंने अपने पर्सपेक्टिव से लिखी मोस्टली. ऑफ कोर्स पुराणों की बात नहीं कर रही हूँ, जो पुराण वगैरह है वो ऑफ कोर्स उस टाइम की लिखी हुई है और मैंने नहीं पढ़ी है. मैं अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग चीजें जो मैं जानती हूँ समझती हूँ उस अकॉर्डिंग बता रही हूँ, ठीक है. आदमियों ने पढ़ी है. अब ना एक वो है थोड़ा सा आदमियों में, मेल ईगो नहीं होता, ठीक है, और उन लोगों को लगता है कि विमेन हमसे नीचे हैं, हमेशा नीचे रही हैं, तो वो उस पर्सपेक्टिव से चीजों को लेकर चले हैं. उन्होंने उस पर्सपेक्टिव से इन पुराणों को, इन एपिक्स को इंटरप्रेट किया है, ठीक है. मतलब आप देखो, अगर बोला ही जाता है, जनरली बोला जाता है कि औरतों की वजह से ये युद्ध हुए. Exactly, that was महाभारत थी वो something. द्रौपदी की वजह से हुई, रामायण थी वो सीता और केकई की वजह से हुई. बट क्या वो उनकी वजह से हुई थी या वो मेल ईगो की था? है वो महाभारत जो थी वो अवॉइड करी जा सकती. बहुत बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिली थी दुर्योधन को, अर्जुन को, है ना, दोनों दोनों साइड को बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली थी, लेकिन नहीं, उनको लड़ना था, वो लड़े बस औरत पे, क्योंकि बहुत इजी होता है यार औरतों पे इल्जाम डालना, बहुत ज्यादा इजी होता है. आज की तारीख में अगर सबसे इजी काम है ना तो एक औरत को ब्लेम करना है. कुछ भी गलत होगा भाई, इस औरत की गलती है, ठीक है. सेम थिंग रामायण में थी, केकई को ब्लेम कर दिया गया. क्यों? दशरथ ने ऐसा क्यों वरदान दिया था उसको, क्यों बोला था उसको केकई को कि तुम जो मांगोगी, जब मांगोगी, जैसा मांगोगी मैं दूंगा. और ये क्या बात हुई, वो रघुकुल रीत सदा चली आई, जो मांगा, जो बोला है हमने, जो वचन दिया है हम तो निभाएंगे. और अगर चलो ठीक है दशरथ ने निभाना था, दशरथ को निभाना था ना, राम को क्यों निभाना था? उन्होंने क्यों चूज किया? वो सीता को लेकर गए, चलो इट वॉज सीताज चॉइस Sita's टू choice, गो विद right? हिम, लेकिन किसी की कही सुनी बात पे कि नहीं सीता तो अब रावण के पास रह आई है तो शी इज नॉट प्योर. प्योरिटी क्या है? आप प्योर थे, अब इसकी क्या गारंटी है कि आप भी तो अकेले घूम रहे थे, आपने कुछ नहीं किया, इसकी क्या गारंटी है? She could have questioned that as well. Exactly, but she didn't. Have you read any book in which something of this sort mentioned? नहीं, नथिंग, दिस एवरीथिंग इज हेयर, ठीक है. लेकिन जब आप विमेन पर्सपेक्टिव से इन माइथोलॉजीज को, इन एपिक्स को पढ़ते हो ना, तो ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं. और मैंने इतनी बुक्स पढ़ ली है ना अब, तो यार है ये चीजें मेरे दिमाग में कि यार क्यों औरतों को ही ब्लेम कर रहे हो यार. वो जो वॉर हुई वो होना जरूरी थी, ठीक है, क्योंकि ये कार्मिक साइकिल थी, रावण की कार्मिक साइकिल थी और दुर्योधन की कार्मिक साइकिल थी. उन्होंने ऐसे कर्म अपने पास लाइफ में किए थे जिसकी वजह से वो हुआ. द्रौपदी, सीता, केकई, ये सिर्फ एक जरिया थी, रीजन नहीं थी. ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. And I think mythological fiction, the retelling and the reimagining writing work, that brings in that. I just hope like people understand it and they just interpret it another way, not the way it was shown in TV or something like that, as per the Mahabharata or Ramayana. Because I think the more you will read into the POVs of women, it becomes more fierce and it will lead to again lead to some arguments, debates and comments passing by the people. ऑफ कोर्स सबका, क्योंकि सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, सबका अपने अपने पर्सपेक्टिव है. और मैं तो यहाँ बोलती हूँ कि ना जो माइथोलॉजिकल फिक्शन है ना वो फिक्शन है. आप जो टीवी पे भी देख रहे हो ना वो भी फिक्शन है, 100% नहीं है. That's also not इफ यू 100% रियली sure. वांट टू नो अबाउट योर एपिक, रीड पुराण्स, रीड जो एक्चुअल बुक्स लिखी गई थी. तुलसीदास की रामायण है, या जो महाभारत है, जो एक्चुअल किताबें हैं उनको पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ो, अगर आपको उनको एक्चुअल में जानना है. ये फिक्शन है, ये जो ऑथर लिख रहा है वो आधी चीजें अपनी इमेजिनेशन से लेकर आ रहा है. वो खुद सोच रहा है कि
उस टाइम पे शायद ऐसा हुआ, आदमी अपनी सोच से लिख रहा है, औरत अपनी एग्जैक्टली। सोच से लिख रही है ना। तो फिक्शन को थोड़ा फिक्शन के तरीके से ही चलने देना चाहिए, मुझे ऐसा मतलब लगता है कि आपको ये नहीं मान लेना चाहिए नहीं भाई ऐसा ही हुआ था। जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल द फॉरेस्ट ऑफ एन्चैंटमेंट्स, ठीक है, बहुत अच्छी बुक लिखी है, बहुत अच्छी, कोई फ्लॉ नहीं है इस बुक वेरी में ना। वेरी मतलब ब्यूटीफुल। मैंने जितनी भी माइथोलॉजिकल फिक्शन बुक्स पढ़ी है उसमें दिस बुक रेट्स द टॉप, सबसे बेस्ट बुक मुझे यही लगती है, ठीक है। लेकिन वो फिक्शन, देर इज नो गारंटी कि जो चित्रा बनर्जी ने लिखा है वो एग्जैक्टली हुआ था। I can say that because seeing on in Ramayan talking about sage Parshuram, that was one point where I got stuck. The when he comes back in rage to ask Ram how dare he like broke the dhanush. So that was one point in Ramayana on TV. I have seen that he came right there as soon as he broke the dhanush. हाँ, Parshuram वो came. शादी के टाइम पर है, Yeah, ठीक है। but in this book, The Forest of हाँ, Enchantment, he came after the marriage in the jungle on their way to एग्जैक्टली Ayodhya. एग्जैक्टली एंड नाउ इन दिस बुक इफ यू सी, तो जो शादी थी वो इंस्टेंटली नहीं होती है। ही Exactly. सेड, राम सेड कि नहीं मैं अपने पापा और अपनी फैमिली के बिना ये डिसीजन नहीं लूंगा, मैं करना चाहता था मैंने किया, है ना। लेकिन अब मेरी फैमिली आएगी तो, पर जो हमने देखा है या जो आप और बुक्स अगर आप पढ़ो तो वहां पे तो अलग है कि इंस्टेंटली चीजें हो रही है, तो इट्स देयर पर्सपेक्टिव। क्योंकि जो पुराण हैं, जो किताबें हैं, उनमें वर्ड बाय वर्ड चीजें नहीं लिखी हैं उनकी। आई बिलीव दैट कि अब ऐसे हुआ, राम 7 बजे उठे, 6 बजे सोए, उन्होंने खाना खाया, ये जो बीच के गैप्स है ना, ये सब अपनी इमेजिनेशन से चला रहे Which is that one book that changed you as a person in mythological fiction? हैं। इट्स वेरी हार्ड टू नेम ओनली वन बुक। आई हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय सो मेनी बुक्स, और इन माइथोलॉजिकल फिक्शन ओनली वन इज द फॉरेस्ट ऑफ एन्चैंटमेंट्स, ठीक है। मैं इसी बुक के बारे में बताऊंगी। मैं इस बुक को जब तक नहीं पढ़ी थी ना, तो भगवान राम का जो जो थे उनकी इमेज ना एक अलग थी, एक अलग की मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो बचपन से समझा था कि नहीं भगवान है, सब सही किया। कभी इस बुक को पढ़ने से पहले मैंने कभी ना सोचा ही नहीं था कि जो औरतें पीछे रही उनका क्या हुआ, जो औरत उनके साथ चली उसकी क्या स्टोरी थी, कभी नहीं सोचा था। पर इस बुक को जब पढ़ा ना तो मतलब एक पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया, चीजों को देखने का पर्सपेक्टिव चेंज हो, खुद को देखने का पर्सपेक्टिव चेंज हो गया, दूसरी औरतों को देखने का पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। तो एक ये बुक है ऑफ कोर्स, एंड देयर इज द सीरीज, सती सीरीज बाय कोरल दास गुप्ता, और उसमें आहाल्या, है ना। Okay. उनकी उनकी शायद वो फर्स्ट बुक है। तो आहाल्या वो भी एक ऐसी स्टोरी और एक ऐसा कैरेक्टर रहा है जिसने मुझे काफी हद तक बदला है। That's wonderful. I'll share my experience of reading हाँ Forest of प्लीज। हाँ हाँ Enchantment. You were the person who recommended, like, when I asked, like, I want to read one book before I come up with my thoughts about the mythological fiction. So, this was the book you recommended, The Forest of Enchantment. So, when I was reading it, I just opened the book. I did not think of anything while when I started reading it. But as soon as I started reading it, I was into the book. I was hooked. I could not. I was like hoping, what's next? What's next? I was not able to put down the book until I finished it because it was making me like laugh. It was making me compare the women of today's era and the women of that time because the way it is written, it shows the fiercest women of this time. The way any women will look forward to to her husband, or the woman who is like possessed by somebody else, the woman who looks for someone as a partner. So all these things look like of this time, but that book made me understand this was there as well. Like पुराने जमाने में भी तो लोग प्यार करते थे ना. It's like a love story and they were bind by a divine force. So they already knew it. उनके लिए वही प्यार था. Like they were made for each other sort of. तो जब हम रामायण और महाभारत या फिर कोई भी और माइथोलॉजी एपिक देखते हैं अपना, तो हम ना उसमें हम नहीं सोच पाते हैं कि अरे उस टाइम पे भी ऐसे लोग लव मैरिज करते होंगे, उनके बीच में प्यार होता होगा. सो दिस बुक मेड मी अंडरस्टैंड दैट दिस इज नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट. इट हैज बीन रनिंग सिंस like long time from the history, and the point is ki everything has been written and set somewhere that is happening even today. But the other part that I felt was कि जो सीता की स्टोरी है, सीता के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई गई है कि सीता के साथ गलत हो रहा था, शी न्यू दैट, एंड शी ऑल्सो एक्नॉलेज कि उसकी वजह से मतलब ये सब हुआ कि लाइक वो एबडक्ट हुई बिकॉज ऑफ हर उसकी जिद की वजह से. हाँ क्योंकि वो
पहले वो But that was also देखा। defined by the destiny that has to happen to make Ramayana happen. एग्जैक्टली exactly. जब जो होना होता है वो तब होता ही है। और सबकी कार्मिक साइकिल थी, सबकी ही पूरी एपिक के अंदर, सीता की, केकई की, रावण की, मंदोदरी की, हनुमान की, एवरी एवरी कैरेक्टर, सबका कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ थी, इसलिए वो इस लाइफ में इस आए लाइफ में और आके उन्होंने right. जो किया वो करना ही था। ठीक है, तो या दैट्स इट, यही चीजें हैं, मतलब लिखा हुआ है यार, जो होना है जब वो होके ही रहेगा, आप कुछ भी कर लो। लेकिन ना एक चीज है तन्वी, बट आई बिलीव, जब आपने बोला कि आपको सब सेम सेम चीजें लग रही है ना, तो मुझे ऐसे लगता है ना कि हम प्रोग्रेस कर ही नहीं रहे एज अ ह्यूमन बीइंग। हम बहुत ज्यादा रिजिड हो चुके हैं चीजों को लेके, ठीक है। जहां हमें होना चाहिए था कि आज के टाइम पे एक आदमी और एक औरत इक्वल होने चाहिए। हम बात करते हैं कि मेन एंड वुमेन आर इक्वल, बट आर दे? डू यू बिलीव दिस? आर वी इक्वल Actually, टू I अ have मैन? a theory on that, which I always try to profess. When we say about equality of men and women, there are conditions applied to it, and people don't understand it, and then they bring it like dharna leke aa jate hain ki equality nahi hai. A women goes through menstruation every month, so there are conditions for the way she has to be treated equally. Like अगर उनको extra छुट्टियां मिल रही हैं workplace पे, या उनको extra privilege मिल रहे हैं, that is because of that extra thing हाँ, she's थिंक going through. शी इज गोइंग थ्रू, भाई, शी इज गोइंग Right. थ्रू सच So अ लाइफ people थ्रेटनिंग have पेन। to understand like equality comes with condition based on the gender. एग्जैक्टली। Until unless that is understood, I believe people are not going to know the true meaning of equality, and it is not going to happen any soon. I can say that. Let's talk about like for readers who stay away from mythological fiction, considering like there can be many thoughts and myths in their mind. So what do you want to tell them to make them read mythological fiction? सी, आई बिलीव कि अपने रूट्स के बारे में ना लोगों को पता होना चाहिए, अपने कल्चर के बारे में ना पता होना चाहिए। और माइथोलॉजी जब पढ़ोगे ना, तब ही पता चलेगा कि हम क्या थे और हम क्या बन रहे हैं, है ना। True. यार, अपनी हिस्ट्री, अपने ही कल्चर के बारे में अगर तुम्हें नहीं पता है, तो फिर तुम खुद के बारे में कुछ नहीं जानते हो, ठीक है। अगर आपको खुद के बारे में जानना है, तो अपना पास्ट तो देखोगे ना, अपनी हिस्ट्री तो देखोगे ना, तो रीड दीज बुक्स। Like to summarize this, to know yourself and to know your roots, you should definitely pick up mythological Exactly. fiction, because they are like the mirror. What do you think? Like, are they the mirror to the society, the mythological fiction genre? yes, they definitely are mirror to the society। दिखा रही है भाई, कितना क्या थे, क्या हो, वही हो जहाँ थे, वही थॉट प्रोसेस है। वो 4 लोगों की बात तब भी सुनी गई थी, 4 लोगों की बात आज भी सुन के चीजें करी जा रही हैं। 4 लोग क्या कहेंगे, तुम ऐसे कर रही हो। Oh, that's so fun. Tell me about one book that everyone should read in mythological genre. ठीक है, अगेन इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू, बट देयर इज दिस वन बुक आई रेड रिसेंटली, लेकिन शायद जनवरी फरवरी में, बाय आनंद नीलकंठन। व्हेन इट कम्स टू माइथोलॉजिकल फिक्शन, उनकी बुक्स भी बहुत अच्छी होती है, बट इट्स नॉट अ माइथोलॉजिकल फिक्शन, इट्स नॉट अ फिक्शन, इट्स अ नॉन फिक्शन बुक। एंड अगर उनका मैं नाम सही बोल रही हूँ तो इट्स मैनी रामायण मैनी स्टोरीज। Yeah, I have heard of that book, ठीक and है, I've seen on your page as well. इट इज अ नॉन फिक्शन बुक जो कंपेयर करती है मल्टीपल स्टोरीज को। लाइक रामायण भी जो है, वो आप देखोगे तुलसीदास ने एक अलग लिखी है, जो जो क्या वाल्मीकि। नाम था, वाल्मीकि जो थे, उनकी एक्चुअल उनकी है, पर उसको फिर इंटरप्रिटेशन करके साउथ में अलग लिखी गई है, बंगाल में अलग है, नॉर्थ इंडिया की एक अलग चलती है, मराठी की एक अलग है। एंड देन नॉट ओनली इन इंडिया, आप अगर थाईलैंड साइड पे जाओगे तो वहाँ पे भी इंडियन कल्चर काफ़ी है, तो उन लोगों की एक अलग है, और सब ना अपनी अपनी एक स्टोरी चलाते हैं। जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, लक्ष्मण रेखा, ठीक है। तो उस बुक के अकॉर्डिंग टू आनंद नीलकंठन दिस बुक, लक्ष्मण रेखा वॉज नॉट देयर इन वाल्मीकि's रामायण, इट केम इन तुलसीदास रामायण, ठीक है। और वो शिफ्ट जो उन्होंने बताया, वो इसलिए हुआ क्योंकि तुलसीदास ने जो रामायण लिखी, वो उस एरा में लिखी थी जब विमेन को थोड़ा पर्दा करके रखवाया जाता था, जब औरतों को लेके लोग हो गए कि नहीं, इनको तो घर में रखना चाहिए, नहीं ये बाहर जाएंगी तो गड़बड़ी होगी, ठीक है।
रामायण जो एरा था एज पर वाल्मीकि बहुत प्रोग्रेसिव था औरतों को लेके। अगर आप पढ़ो तो केकई केकई ने यार सीखी थी ना, गई थी ना वो युद्ध Yeah, में। she had went twice or thrice, I guess, हाँ, 2-3 बार गई थी ना युद्ध में, बचा के and she लाई। saved her husband. एग्जैक्टली सेव दशरथ नहीं। Yeah, तो सीता भी वॉरियर थी, उन्होंने सीखी थी ना युद्ध अपने मिथिला के अंदर। वो पूरा उनके पेरेंट्स ने उनको फ्रीडम दिया था ना कि भाई सीखो, सब कुछ सेल्फ प्रोटेक्शन आना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप जब तुलसीदास की रामायण पढ़ते हो, या जो वो रामायण एक सीरियल जो 90s के बच्चों ने देखा होगा, कोविड में तो खैर सबने ही देखा था। आई एम फॉरगेटिंग द उसके जो प्रोड्यूसर थे और I am डायरेक्टर थे, also. बट उसके उन लोगों के अकॉर्डिंग तो सीता बहुत ज्यादा एक फ्रिजाइल कैरेक्टर थी कि नहीं, छुई मुई सी, अब कुछ नहीं, खुद से कुछ नहीं कर सकती है। अपनी लाइफ जो थी वो पापा के हिसाब से, जनक, किंग जनक के हिसाब से जी, फिर रामचंद्र जी के हिसाब से जी, और जब रावण में लंका में वो जब चली गई तो बिल्कुल एक पेड़ के नीचे बैठी हुई है बस, और कुछ नहीं है। तो वो एक चीज है, सबका अपना अपना हाँ, उसमें वो अलग अलग। इंटरप्रेट ही नहीं किया गया है, जहाँ पे लाइक although they did it secretively, her parents allowed her to learn self defense, especially her mother, या who promoted that. एग्जैक्टली तो सब ना अलग अलग तरीके से लिखी गई है चीजें। या दैट्स इट। सो दिस इज द बुक विच आई थिंक, विच आई बिलीव, if there is someone who wants to start reading mythology, उसको ये बुक पढ़नी चाहिए, जिससे उसको पहले क्लैरिटी मिलेगी एक, कि जो उसने अब तक समझा है, सीखा है, वो सब कुछ सच नहीं। बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो उसको पता ही नहीं है, ठीक है। तो वो एक कंपैरेटिव व्यू उसको उस बुक से मिलेगा। सो या दैट्स व्हाट आई बिलीव कि ये बुक्स पढ़नी चाहिए एक सीन। Let's come back to yourself now. Why do you read mythological fiction? For plot or symbolism? um, it's a very interesting question. I most of the time I read for the plot. I want to know more and more and more and more about what actually happened. See, I want to read the actual रामायण written by तुलसीदास एंड वाल्मीकि, और जो हमारे पुराण है, जो महाभारत है, मैं वो जो ओरिजिनल जो ऑथेंटिक वर्क है ना, मैं वो पढ़ना चाहती हूँ। लेकिन द प्रॉब्लम इज क्यों कि ना, मतलब मैं ना बचपन से ऐसे, मतलब आई केम फ्रॉम अ वेरी रिलीजियस फैमिली। तो ये जो पुरानी किताबें होती हैं, इनको बहुत वो रिलीजियस वे में बांधा गया है कि अगर आपको इनको पढ़ना है तो एक सर्टेन वे में पढ़ना होगा। Exactly. एक सर्टेन टाइम पीरियड है कि सुबह उठ के नहा धो के एंड देन आपको अच्छे से भगवान की आरती करके और फिर वो पढ़ना होगा। अब घर पे रहती तो ये सब पॉसिबल था, ठीक है, आपका एक शेड्यूल्ड प्लेस होती है, मंदिर है, वहां पे आप पढ़ सकते हैं। पर अब एक रूम लेकर रह रहे हो यहाँ पे, ठीक है, हर तरीके के आपके हाथ यहाँ लग रहे हैं सब, तो इस वजह से मैं वो बुक्स पढ़ नहीं पा रही हूँ, ठीक है। तो अब जब वो बुक्स मेरा पढ़ना नहीं हो रहा है, लेकिन इंटरेस्ट तो मेरा पूरा है इसमें, है ना, इंटरेस्ट तो पूरा है, इंटरेस्ट तो कहीं नहीं जाने वाला है, जानना तो है कि क्या हुआ है, कैसे हुआ। तो नाउ आई एम रीडिंग डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, डिफरेंट स्टोरीज, कि हाँ भाई चलो देखते हैं किसको क्या लगता है, क्या हुआ होगा, क्या नहीं हुआ होगा। तो अब तो ना ऐसे हो चुका है कि देयर इज दिस स्टोरी, जो महाभारत थी, जो रामायण थी ना, वो मेरे दिमाग में है, ठीक है। मैंने इतनी इतनी पढ़ ली है कि अब मुझे पता है कि, मतलब मुझे ऐसे लगता है कि नहीं यार, ऐसे 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 हुआ। जो सीन मुझे अच्छे लगे वो सीन मैंने रख ली है। और मतलब हो सकता है यार मैं कभी कोई रिटेलिंग लिख दूं, इतनी पढ़ ली तो मुझे लगता है लिख तो सकते हो यार। और वो रीडर ही क्या जो किताब नहीं लिखना चाहता, ऑफ कोर्स यू आर अ राइटर, यू आर अ रीडर एंड अ राइटर, Do सो you यू नो दिस। remember, like, I told you this thing, I have read this book and now I feel like I want to write a हाँ retelling. एग्जैक्टली, कुछ दिन पहले था, पर हाँ मतलब आई डू वांट टू राइट अ बुक, आई हैव नेवर सेड इट पब्लिकली, ठीक है। देयर इज दिस स्टोरी इन माय माइंड विच इज नॉट माइथोलॉजिकल फिक्शन। लेकिन अभी बात करते करते मुझे लगा कि यार पढ़ तो मैंने बहुत सारी ली है, जानती भी मैं बहुत कुछ हूँ, एक आधी तो मैं भी लिख ही सकती हूँ। लेकिन द ट्विस्ट इज, माइथोलॉजिकल फिक्शन लिखना ना एक बहुत बड़ा टास्क है। वाई? क्योंकि आप कुछ भी नहीं लिख सकते हो, आप जो लिख रहे हो ना, वो आपके पास उसके एक्चुअल फैक्ट्स होने चाहिए। Facts, आप, and you need a lot of हाँ, research. आप बिना रिसर्च के नहीं लिख सकते ना। आई डोंट हैव टाइम टू डू दैट रिसर्च। जो चित्रा बनर्जी ने अपनी लाइफ के 10 साल ऑलमोस्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने दिए, जो कोरल दास गुप्ता ने अपनी लाइफ के दिए, जो कविता काने ने दिए, मैं उतनी रिसर्च नहीं कर सकती हूँ, क्यों नहीं कर सकती, मेरे पास नहीं है इतना टाइम और इतनी एनर्जी, ठीक है। लेकिन ना, मतलब वही चीज है, बहुत
बहुत एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप गलत ना लिख गलत दो. ना लिख आई दो. एम गोइंग टू टेक एग्जाम्पल हेयर ऑफ वन बुक. ठीक है, आई गेस इट्स गोइंग टू बी कॉन्ट्रोवर्शियल बट देयर इज दिस वन बुक केकई बाय वैष्णवी पटेल. इफ यू रिमेंबर लास्ट ईयर ना मैंने नवरात्रि सीरीज करी थी और दिवाली सीरीज करी थी वेयर आई वाज रिकमेंडिंग माइथोलॉजिकल फिक्शन. Fiction, दिवाली में right? तो स्पेसिफिकली 5 दिन बुक्स रिलेटेड टू रामायण आई Ramayan, right? रिकमेंडेड, राइट. सो मैंने उस टाइम पे, अब ऑफ कोर्स इतनी सारी बुक्स तो मैंने भी नहीं पढ़ी थी, ठीक है, एंड आई वांटेड टू ब्रिंग न्यू एंड फ्रेश बुक्स, ऐसी बुक्स जो लोगों ने ज्यादा नहीं सुनी हो पढ़ी हो. तो आई रेड दिस बुक केकई विच इज वेरी फेमस इन वेस्ट. इट्स अबाउट रामायण एंड ऑल बट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ केकई. ठीक Okay. है, नाउ केकई को हम नेगेटिव शेड में देखते हैं. ठीक है, True. शी इज द एक्चुअल विलन ऑफ द एंटायर एपिक. ठीक है, क्योंकि जो हुआ सब उनके उन 2 वरदानों की वजह वरदानों से की हुआ, वजह से, है right? ना. तो बट आई रेड दैट बुक एंड आई वाज शॉक, क्योंकि उस बुक के अकॉर्डिंग केकई वाज द हीरो. ठीक है, रावण वाज अ हीरो एंड राम वाज द विलन. ठीक है, Okay. राम वॉज द विलन एंड उनके अकॉर्डिंग जो केकई ने किया वो इसलिए किया था कि वो राम को बचाना चाहती थी. वो उनको लगता था कि राम रेडी नहीं थे अयोध्या को संभालने के लिए, इसलिए उन्होंने वो चीजें की. दैट बुक इज फुल ऑफ शिट. I think I have heard this theory, like Ram ready nahi the, that's why Kekai हाँ, did this thing. एग्जैक्टली. सो दैट बुक इज फुल ऑफ शिट. आई एम सेइंग दिस पब्लिकली. ठीक है, दिस इज, वो एक ऐसी बुक है आई एम नेवर एवर गोइंग टू रिकमेंड टू एनीवन. ठीक है, आप जो एक रिलीजन है, एक कल्चर है, एक किसी के इमोशंस हैं, उसको बिल्कुल ही गलत पोर्ट्रे कर रही हो. ठीक है, अब वो वेस्ट में फेमस है वो अब मैं बोलती हूँ यार, वहां पे तो लोगों को पता ही नहीं है एक्चुअली में, हमारी स्टोरीज नहीं पता, हिंदुइज्म के बारे में इतना नहीं पता, ऑफ कोर्स हमें भी नहीं पता क्रिश्चियनिटी के बारे में इतना कि एक्चुअल क्या क्या चीजें थी. ठीक है, फिर आप उन लोगों को एक ऐसी स्टोरी दे रहे हो जो हुई ही नहीं थी, जो जिसका कोई सर नहीं, कोई पैर नहीं है, तो कैसे, है ना. तो इसीलिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है एक माइथोलॉजिकल फिक्शन राइटर के ऊपर कि अगर वो True. कुछ लिख रहा है तो उसकी स्टोरी बैक्ड होनी चाहिए विद फैक्ट्स. With facts, like no matter how much they are changing the story into fiction, like converting into fiction, they have to be a little truthful. Because while I was retelling, I was wondering, like there were few things that changed. I think I asked you or somebody else, like how can somebody change the mythological fact like it happened in the book I read. So is that something you will go for? Like will you consider it is okay or not okay? How is it? सी तन्वी, अगर कोई मेजर प्लॉट ट्विस्ट देता है, फॉर एग्जाम्पल दिस बुक केकई, जहाँ पे विलन को हीरो बना दिया, हीरो को विलन बना दिया, तो गुस्सा आता है आपको, आपका दिमाग खराब होता है. ऐसी वो बुक्स पढ़ के नहीं मजा आ रहा है, हल्का फुल्का चलता है, क्योंकि जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि एग्जैक्ट तो कहीं नहीं लिखा है ना कि राम सुबह 7 बजे उठते थे, 6 बजे, 7:30 बजे ब्रश करते थे, 8 बजे हॉर्स राइडिंग करते. एग्जैक्टली सेम चीजें तो नहीं लिखी. जो मेजर इवेंट्स थे वो तो सही लिखोगे ना भाई. हाँ, right. ठीक है, इट्स ओके. अगर परशुराम जो थे वो शादी की जगह वो बाद में आ गए, पर वो आए. ठीक है, वो right. आए, वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था. कब आए, ठीक है, उनका आना इम्पोर्टेंट था. ठीक है, उनका और राम के बीच जो आर्ग्यूमेंट हुआ था, जो बीच में सीता आई थी, वो फैक्ट्स आप चेंज नहीं कर सकते हो. आप उसकी टाइमिंग चेंज कर सकते हो, पर वो हुआ था भाई, उसको तो मत बदलो. ठीक है, अब रावण एंड में मरा था, ठीक है, इसको मत बदलो कि रावण नहीं मरा. भाई रावण को छोड़ दिया राम जी ने, ये फैक्ट. कैसे मरा वो आपके पास उसकी लिबर्टी है, आपका कैरेक्टर है, आपको जैसे मारना है मार दो, पर मारो उसको. ठीक है, आप प्लॉट ट्विस्ट के नाम पर बिल्कुल कहानी मत बदल दो, 360 डिग्री चेंज मत ला दो इनमें, क्योंकि ये फिक्शन है, लेकिन ये हुई है. ठीक है, आप कितना इसको माइथोलॉजिकल फिक्शन बोल लो, लेकिन ये स्टोरीज नहीं है, ये हमारी हिस्ट्री है, ये हमारा पास्ट है, वो हुआ है. ठीक है, आप पास्ट को नहीं बदल सकते हो. आप नहीं बोल सकते हो फॉर एग्जाम्पल कि ताजमहल किसने बनवाया था, ताजमहल शाहजहां. शाहजहां ने, कि ताजमहल शाहजहां की जगह अकबर ने बनवाया था. शाहजहां ने ही ताजमहल बनवाया था, सबको पता है. वैसे ही ये जो रामायण है, ये जो महाभारत है, ये हुई है, और जैसे हुई है वैसे ही हुई है. मैं बता रही हूँ, मैंने बहुत बुक्स पढ़ी है यार, मैंने और भी बुक्स पढ़ी है जहाँ पे राम की थोड़ी डार्क शेड दिखाई. ठीक है, देयर इज दिस बुक बाय वोल्गा, लेकिन हाँ, वोल्गा की जो बुक है
उसमें भी उन्होंने दिखाया है, लेकिन एक सटल वे में दिखाया है, बिल्कुल बदल नहीं दिए कि भाई बिल्कुल नहीं साहब, रावण बिल्कुल बेस्ट मैन था, उसने कुछ नहीं किया था, राम ही सारे गलती थे, नहीं, उससे दिखाई है जो दिखानी चाहिए थी उसको चीजें। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, प्लॉट ट्विस्ट लव, शॉक मत। With that, I have an interesting question for you. What is your take when mythological fiction blends with modern settings? पढ़ के ना मजा आता है। सी देयर इज दिस वन बुक जो मैंने इस थीम पर पढ़ी थी, बहुत साल तो क्या 3-4 साल बोल सकते हैं पहले। ठीक है, इसका दिस बुक इज बाय त्रिशा दास, द मिस्टर स्कूरू। ठीक है, उसमें दिखाया, मैं बहुत ब्रीफ में स्टोरी दे रही हूँ, एंड आई होप एंड आई विश मैं स्पॉयलर्स ना दे दूँ, क्योंकि बहुत सही बुक लिखी है टू बी वेरी ऑनेस्ट। पढ़ के जो मजा आया था ना उस बुक को, तो उसमें क्या होता है कि ये सब स्वर्ग में चले जाते हैं सारे पांचों पांडव एंड द्रौपदी एंड कुंती, बट कुंती और द्रौपदी वो भगवान से, चित्रगुप्त एंड ऑल से सेटिंग करके धरती पर धरती वापस पे आती है। वापस। इस टाइम जोन में आ रही है जब हम सोशल मीडिया पर हैं, हम एकदम सोशल लाइफ हमारी इतनी अच्छी हो चुकी है, पार्टी एंड क्लबिंग एंड ऑल, तो वो उस टाइम के लोग इस टाइम पर आ रहे हैं। ठीक है, तो पहले होता है कि जो द्रौपदी और कुंती वो दोनों आती है, उनके पीछे पीछे पांचों भाई भी आ जाते हैं। अब वो द्रौपदी और कुंती को आए वो थोड़ा टाइम हो जाता है, लाइक साल और 2 साल, पर वो जब भाई आते तो उनके लिए वो बहुत शॉकिंग होता है कि भाई क्या हो रहा है, ये क्या है। तो वो बहुत एक फनी स्टोरी है, बहुत बहुत एंटरटेनिंग स्टोरी। तो मुझे उस को पढ़ के बहुत मजा आया था, जो स्पेसिफिकली इस थीम पर है कि पुराने कैरेक्टर्स इन दिस न्यू एरा। या Yeah, I also have an example for this. I have been reading two blogs, like two people's blog, and they write these kind of story with mythology and the modern setting. I to really enjoy it. Once I was reading a blog when I was at home. I shared it with my mother. Like she was there and I was sitting and I was reading. We both laughed out loud, like reading हाँ, it. मतलब सोचो ना यार, सोचो यार, आज के टाइम पर अगर अगर नारायण होते, वो नारायण, हाँ, जो वो हैं चित्रगुप्त एंड नारायण, जो फनी कैरेक्टर्स जिनको बोला जाता है, ठीक है, इन एपिक्स के, अगर वो यहाँ पर होते और वो जो करते थे उस टाइम पे अब भी कर रहे होते, या वो लोग कहाँ पर चिट्ठी पत्र लिख के अपनी बातें 10-10 दिन में भेजा करते थे, अब नाउ वी आर जस्ट राइटिंग एंड तन्वी कहाँ पहुंची, आई नहीं तुम अब तक। तो उनके लिए कितना बड़ा शौक होता। पर हाँ, ऑफ कोर्स ये बहुत बहुत अच्छा मुझे लगता है कि एरिया है जिसको ऑथर्स एक्सप्लोर कर सकते हैं, इस पे लिखा जा सकता है फनी वे में, बिना किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करे, ऑफ कोर्स। Do you have a count for the number of books you have read in mythological fiction? तन्वीर, इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस कहाँ से लेकर आ रही है, लाइक आई, मेरे को तो यही याद नहीं कि मैंने अपनी लाइफ में कितनी बुक्स पढ़ी हैं। Oh, एज आई मेंशन बिफोर, आई एम रीडिंग सिंस चाइल्डहुड। ठीक है, और ये अगर आप किस वे में काउंट करते हो, क्योंकि बचपन में ना, लाइक मैं शायद थोड़ा डेविएट कर रही हूँ अपनी कॉन्वर्जेशन को, पर तन्वी यू वोंट बिलीव। ठीक है, मैं बचपन से पढ़ रही हूँ, ठीक है, मुझे बहुत शौक था पढ़ने का, लेकिन मेरी फैमिली थोड़ी ऐसी है, मतलब हर मिडिल क्लास इंडियन फैमिली ऐसी होती है कि किताबें फ्री में पढ़ रहे हो तो ठीक है, पैसा दे के खरीद के नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अब स्कूल के अंदर ऐसे होता था, आपको एक बुक एक वीक में मिलती थी, और कई बार वो पीरियड भी जो होता था दूसरी टीचर्स ले जाती थी, स्पेसिफिकली मैथ्स टीचर, उनका सिलेबस ही खत्म नहीं होता था। है ना? तो क्या होता था यार, पर पढ़ने का बड़ा शौक था बचपन से। ठीक है, क्योंकि मैं एक ऐसी फैमिली से आई हूँ जहाँ पे ना रीडिंग करी गई है, मतलब आई हैव सीन माई ग्रैंड फादर रीडिंग बुक्स, आई हैव सीन माई ग्रैंड मदर सिटिंग विद माई ग्रैंड फादर, वो पढ़ रहे हैं, वो सुन रही है, तो कहानियां बचपन से अच्छी लगती है, वो दादी नानियों की कहानियां सुनते सुनते बड़े हुए हैं, है ना। तो अब चुल तो थी कि भाई किताबें तो पढ़नी है, किताबें तो पढ़नी है, लेकिन कहाँ से सोर्स करी, तो मैं ना ये जो मम्मियों की व्रत कथाएं नहीं होती थी, okay. ठीक है, आई यूज टू रीड दैट। I have read that too ठीक है, once. वो बृहस्पति Friday. फ्राइडे वाली किताब, और वो जो पूर्णिमा की व्रत कथा होती है, सत्यनारायण की व्रत कथा जो किताब होती है, मैंने इतनी बार पढ़ी है ना अपनी लाइफ में, मतलब जब पूजा हो रही है उस टाइम पे तो ऑफ कोर्स पढ़ते ही हैं। ठीक है, बट एक ऐसे, अब कुछ नहीं है करने को, क्या करें, कहीं जाने का मन नहीं है, कुछ करने का मन नहीं है, बाहर इतना कितना ही जाएंगे गर्मियों में स्पेसिफिकली, तो आई जस्ट यूज टू गो टू द मंदिर, हमारे घर पे एक डेडिकेटेड सेपरेट रूम है ठाकुर जी के लिए, तो वहां जाके चलो आप निकाल ली कोई भी किताब, बैठ गए लेकर पढ़ ली। तो मैं
वैसे पढ़ती हुई आई हूँ, तो अब मेरे लिए बहुत मुश्किल है बताना है एग्जैक्टली कि कितनी किताबें मैंने पढ़ी है। पर अगर मेरे को और भी ना यार, अब ऑफ कोर्स इतनी सारी मैंने लाइफ में शायद 600-700 बुक्स तो मुझे लगता है पढ़ ली होंगी। Huge number. 500 तो मेरे गुड रीड्स पे लिस्टेड बुक्स हैं, ठीक है। और कई बार ना ऐसे होता है ना, मैं पूछती हूँ लोगों से, मेरे दोस्त है जैनन, ऑफ कोर्स तुम जानती हो उसको, मैं उसको फोन करके पूछ रही हूँ, यार ये बुक मैंने पढ़ ली क्या, ये बुक मैंने मेरे पास है, क्योंकि एक पॉइंट के बाद यू यू कांट काउंट, ठीक है। अब इतना हो चुका है कि कितनी, तो और अब तो मुझे स्पेसिफिकली एक जॉनरा में बोल रही हो कि इस जॉनरा में कितनी पढ़ी है, भाई इट्स वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। मैं तो गिन भी नहीं सकती, मुझे याद ही नहीं है ना। हम कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं ना, तब उस टाइम पे मुझे किताबों के नाम याद आ रहे हैं कि हाँ हाँ हाँ, जैसे अभी कुछ देर पहले आई कोटेड त्रिशा दास बुक्स, द मिस्टर स्कूरू, ठीक है। तो मे बी 30-40 समथिंग, और Oh, that's हो a सकता है, good number. I'm definitely not sure. I'm not sure at all. Yeah. Like out of 500 plus books, 30-40 are from mythological fiction. Yeah, And we exactly. can see a lot of them here itself. हाँ And I'm wondering, you would be having double or triple of these in your हाँ, cupboards एग्जैक्टली at your home. एग्जैक्टली। मेरे घर पे देर इज दिस डेडिकेटेड रूम, मतलब मेरा जो रूम था एक पॉइंट पर जब मैं घर पे थी, ऑफ कोर्स अब घर पे नहीं है तो घर पे रूम भी नहीं है, गेस्ट हो चुके हैं। यार ये होता है, मतलब यू कुड रिलेट विद मी। आप जब घर से बाहर निकल जाते हो तो वो घर मम्मी पापा का घर हो जाता है, वो आपका घर नहीं रहता है ना। वो जो कमरा आपका था वो कमरा आपका नहीं रहता, आप कहीं ना कहीं गेस्ट बन जाते हो, ठीक है। तो वो जो रूम है, उस रूम में एक आला, हम लोग बोलते हैं उसको, एक अलमारी टाइप है, लोगों ने देखी होगी, बट अभी थोड़े चेंजेस हुए हैं तो मेरी बुक्स थोड़ी शिफ्ट हुई हैं दूसरी जगहों पे। तो उसमें एक बहुत एस्थेटिकली मैंने सारी बुक्स अपनी रखी, नॉट सारी, ओनली 30-40% बुक्स मेरी वहां थी, क्योंकि बाकी जो बुक्स थी वो दूसरी जगह रखी हुई की स्पेस, ऑफ कोर्स, है ना। तो वहां पर रखी हुई हैं किताबें, और अब ना मेरे को एकदम से याद आ रही है यार मेरी किताबों की, यार ये कैसे हो रहा है यार। अगर मैं लाइफ में कोई सबसे ज्यादा मिस करती हूँ ना तन्वी, मैं अपनी बुक्स को मिस करती हूँ। मतलब मेरे को लोगों से कनेक्शन होते हैं, बहुत अटैचमेंट्स होती है, बट ना वो अटैचमेंट जो मुझे किताबों से है ना, वो मुझे कभी किसी इंसान से नहीं मिलेगा। Since you have talked about the attachment with the books, tell me one retelling that you have loved by your heart, you have read till date. यार इट्स अगेन अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन तन्वी, यू आर अ रीडर, है ना। और एक रीडर से ये क्वेश्चन पूछना मुझे लगता है कि पाप होना चाहिए। आप नहीं पूछ सकते हो एक इंसान, एक रीडर से कि एक किताब, अपनी हजारों किताबों में से सिर्फ एक किताब निकाल के बता जो तेरी बेस्ट है। नहीं है। मैं पार्शलिटी नहीं करती हूँ, मैं सारी किताबों को इक्वली प्यार करती हूँ, ठीक है। कुछ किताबें जो मुझे बुरी लगी हैं वो बुरी ही लगी हैं, ऐसे नहीं है कि कम बुरी लगी है, ज्यादा बुरी लगी है, और जो किताबें अच्छी लगी है वो अच्छी ही लगी है। लेकिन फिर भी तुमने पूछा है तो मैं बताऊंगी, ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। और जो मेरा आंसर है वो है इमॉर्टल्स ऑफ मेलुआ, द एंटायर सीरीज, शिवा ट्रायोलॉजी, ठीक है। अब ना शिवा ट्रायोलॉजी भी ना यार, मुझे ऑफ कोर्स तुमने नहीं पढ़ी है, ठीक है, और जो लोग देख रहे हैं मुझे नहीं पता है पढ़ी है नहीं पढ़ी है, ठीक है। वो अमीश त्रिपाठी का बेस्ट वर्क है, ठीक है। उन्होंने रामचंद्र सीरीज भी लिखी है, और रामचंद्र सीरीज इतनी अच्छी नहीं, मुझे नहीं लगी इतनी अच्छी, और मैंने उसके नेगेटिव रिव्यूज ही ज्यादा पढ़े हैं, ऑफ कोर्स, है ना। बट जो शिवा ट्रायोलॉजी है ना, वो यार एक अलग ही कहानी है। मतलब मैं उस बुक को पढ़ते हुए सोचती रह गई, यार कोई बंदा ऐसे कैसे सोच सकता है यार, इस लेवल का सोचना, इस लेवल का, कैरेक्टर सारे वही है, स्टोरी वही है, लेकिन स्टोरी वो नहीं। आई डोंट वॉन्ट टू गिव स्पॉइलर्स, ठीक है। और ऑफ कोर्स मुझे तो इतने अच्छे से याद भी नहीं है वो, पर मुझे पता है कि यार वो बहुत अलग स्टोरी है, बहुत अलग है। और अगर कोई बंदा माइथोलॉजिकल फिक्शन पढ़ रहा है और उसने वो बुक नहीं पढ़ी ना, बेकार है तुम्हारा माइथोलॉजिकल फिक्शन बुक पढ़ना। पढ़ो भाई, उस सीरीज को पढ़ो, वर्थ इट है। तो आपके क्वेश्चन का आई गेस आंसर आपको मिल चुका है। And now आंसर I, आंसर है शिवा ट्रायोलॉजी बाय अमीश त्रिपाठी। and now I feel like I am like I need to read that ऑफ कोर्स trilogy. डू रीड इट भाई, डू यू। मैंने बताया ना कि मैंने तो वो बुक बोरो करी थी, ठीक है। अब भाई का दोस्त था, पड़ोस में रहते थे, मैंने उस पूरी सीरीज को एक वीक में फिनिश कर दिया, और वो बहुत थिक बुक्स है, I know. ठीक है। और मैं उस टाइम पे पढ़ रही थी जब मैं पढ़ रही थी सीएस के लिए, एग्जाम से 2-3 महीने पहले, बहुत गंदी एकदम हो चुका था, पहली बुक पढ़ी ना तब हो गया आई नीड मोर, आई नीड मोर, आई कांट ब्रीथ।
टिल द टाइम आई फिनिश दिस सीरीज। तो एक हफ्ते में, क्योंकि किसी और से किताबें आप मांग के पढ़ रहे हो, तो एक प्रेशर था कि यार वापस भी देनी है, वापस भी देनी है ना, कि भाई कल को कोई मांग नहीं ले, क्योंकि कोई मुझसे कुछ मांगता है ना ऐसे दी हुई चीज के लिए, तो वापस मुझे बहुत बेकार लगता है कि यार क्या मैं टाइम पे चीजें नहीं दे सकती हूँ क्या? it feels a little guilty, it हाँ, कि sends भाई you on मैंने a guilt ज्यादा trip. रख ली, मैंने ज्यादा देर के लिए रख ली चीज, है ना। I can तो understand that वो trip. एक हफ्ते में जो मैंने उस पूरी सीरीज को खत्म किया है ना, ठीक है। अब वो बुक तो बोरो करी हुई थी, मेन कहानी पर आती हूँ, बुक तो बोरो करी हुई थी, ठीक है। फिर 2019 जब मैंने द बुक क्रिटिक स्टार्ट किया, उसके बाद आई स्टार्टेड कलेक्टिंग बुक्स, खुद से खरीदनी, दोस्तों से लेनी, मांगनी, जबरदस्ती करके भाई किताबें चाहिए, ठीक है, फेयर में जाके खरीदनी। पर ना अमीश त्रिपाठी की बुक मैंने कभी नहीं खरीदी। लेकिन एक दिन आया जब मेरी एक फ्रेंड है याशिका, ठीक है, उसको वो बुक मिली। वो एक ऐप है ना टी से, जिसका नाम है ब्लू ब्लू कलर का होता है, Telegram. टेलीग्राम, एग्जैक्टली। उस ऐप पे ओरिजिनल बुक उसको मिली, बट इट वाज थर्ड हैंड, नॉट फर्स्ट। मतलब वो बहुत पुरानी बुक थी, बहुत उसकी कंडीशन ऐसी है कि आप उसको पढ़ नहीं सकते हो। आप अगर उसको पढ़ा तो वो पूरी खुल जाएगी, ठीक है। वो इतनी है कि वो उसको अच्छी है, और वो बहुत सस्ती प्राइस में मिली। आई गॉट 3 बुक्स इन 300 रुपीज ओनली, 300 रुपए में तीनों बुक्स आ गई, तो इट वॉज अ स्टील डील फॉर मी। और मैंने बोला भाई तू मंगवा ले, मेरे को तो लेनी है वो बुक, क्योंकि अब पढ़ तो ली है, वापस तो पता नहीं मैं पढ़ूंगी नहीं पढ़ूंगी, बट आई वॉन्ट टू हैव दैट बुक इन माई कलेक्शन। तो आई डू हैव दैट बुक, मेरे पास रखी है। I can see that attraction and the love for the books in you. So let me proceed with the next question about female character now. We have talked about Shiva trilogy and your love हाँ for हाँ that हाँ book. हाँ हाँ। Is there any female character for which you have felt any different from the way you have been hearing since your childhood, from after reading any of the retelling about the from by women POV? एक्चुअली देयर आर टू। एक के बारे में, पहले एक के बारे में बात करती हूँ जिसके बारे में ना लोग बात नहीं करते हैं, जिसके बारे में कोई सोचता नहीं, जिसको पीछे छोड़ दिया गया था। उर्मिला, सीता सिस्टर। मैंने भी इस कैरेक्टर के बारे में ना कभी इतना ध्यान नहीं दिया, बट देन आई रेड कविता कहानी सीता सिस्टर, एंड उस टाइम मुझे क्लिक हुआ, शिट मैन ये भी तो थी। उन्होंने सीता से ज्यादा सेक्रीफाइस किया, True. ठीक है, क्योंकि अब देखो ना यार, ये कोई एक इंसान से शादी करके आई, अपनी फैमिली पूरी छोड़ दी। पहले के टाइम में जैसा हमने बुक्स में पढ़ा है कि वापस जाती ही नहीं थी, और जाती थी Hmm. तो बहुत सालों सालों में जाना हो पाता था, कुछ कुछ टाइम के लिए, कि बेटी ब्याह दी तो बस अब वो ससुराल की है, पियर से कोई लेना देना नहीं है उसका, अनटिल एंड अनलेस कुछ मिसफॉर्च्यून ना हो जाए, है ना। तो वो अपना परिवार छोड़ के आई। परिवार छोड़ने से भी पहले अपनी फैमिली में ही, सीता वॉज एन अडॉप्टेड चाइल्ड ना, Yeah. ठीक है, बट शिव और वो उनकी राजा जनक की ही बेटी थी, ठीक है, लेकिन उनको छोटी बेटी है वैसे ट्रीट किया गया, एक True. राजकुमारी को कि छोटी है सीता बड़ी, ऑल्दो कोई वो नहीं था उन दोनों में, और सबको प्यार से रखा गया, बट स्टिल, है ना। और फिर वो सब कुछ छोड़ के, अपनी फैमिली, अपना शहर, अपना देश छोड़ के, एक अनजान देश में एक एक आदमी के लिए आई, सिर्फ एक इंसान के पीछे आई, और वो इंसान ही उनको छोड़ के चला गया, ठीक है। मतलब उनके क्या स्ट्रगल थे, है ना, उनके बारे में कोई बात ही नहीं करना, कोई चाहता ही नहीं, क्योंकि वो तो साइड कैरेक्टर थी, पर वो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थी, ठीक है। और फिर देयर इज दिस थिंग कि जो जब लक्ष्मण गए थे रामचंद्र जी के साथ वो 14 साल के वनवास के लिए, तब ये था, उन्होंने ये बोला था कि मैं सोऊंगा नहीं, मैं अपने भाई और भाभी की रक्षा करूंगा। अब मुझे याद नहीं मैंने एग्जैक्टली ये चीजें कहाँ कहाँ पढ़ी है, पर हाँ बहुत बुक्स में ये है, और Mentioned, अलग right. अलग तरीके से है, ठीक है। तो कई बुक्स में कई स्टोरीज ऐसी चली आ रही है जो फोक टेल्स होती है, इसमें चला जाता है कि जब लक्ष्मण ने ये बोला कि मैं कभी नहीं सोऊंगा, तो निद्रा देवी जो थी वो आई, और उन्होंने बोला दिस इज इम्पॉसिबल, ठीक है, मैं तो आऊंगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती, तुम्हें तो सोना पड़ेगा। तब लक्ष्मण ने बोला कि मेरी बीवी घर पर है, तुम जाओ उसके पास, मेरी जो नींद है वो उसको दो। तो फॉर 14 ईयर्स उर्मिला अपने रूम में सोई, ठीक है। अब ये एक पर्सपेक्टिव चलता है लोगों का, पर एक पर्सपेक्टिव और है जो कविता कहानी की बुक में सीता सिस्टर में लेकर आए, कि ठीक है वो सब चले गए। अब ये जो बुक है ना स्पेसिफिकली सीता सिस्टर, इसमें उन्होंने पीछे की स्टोरी दिखाई कि जो लोग रह गए उनकी क्या स्टोरी थी, स्पेसिफिकली उर्मिला और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कैसे उन्होंने चीजें संभाली उनके जाने के बाद, क्योंकि फादर इन लॉ की डेथ हो गई, तो जब तक भरत और शत्रुघ्न आए तब तक क्या क्या, और बाकी सारी चीजें भी। तो हाँ मतलब एक उर्मिला का एक ऐसा कैरेक्टर है
जो लोग कम बात करते हैं जिसके बारे में, और जिससे मेरा काफी हद तक पर्सपेक्टिव चेंज किया है औरतों को भी देखने का, और जो साइड कैरेक्टर्स होते हैं उनको देखने का। एंड देन कमिंग टू द सेकंड कैरेक्टर विच इज अहाल्या। ठीक है, अब अहाल्या के बारे में, अहाल्या का भी एक बहुत छोटा सा रोल बोला जाता है कि इतना क्या ही था, बस एक पत्थर बन गई, वो भी उनकी ही गलती थी। जैसा कि पहले बोला, औरतों को ब्लेम करना बहुत ज्यादा इजी टास्क होता है। कोई नहीं बोलता कि भगवान इंद्र की नीयत खराब हुई, गलती उन्होंने करी थी, पर सारी सजा उनको अहल्या को मिली, पत्थर उनको उनके पति ने बनाया। ठीक है, और भगवान राम आए और उन्होंने उनको ताड़ा और उनका उद्धार किया, जो भी था। ठीक है, तो अब ये जो कैरेक्टर है, इसका इनका जो मेरा इनको जो लेके पर्सपेक्टिव था, वो पर्सपेक्टिव चेंज हुआ अहाल्या बाय कोरलदास गुप्ता पढ़ के। ठीक है, उससे पहले वो 5 मिनट का उनका एक डिस्क्रिप्शन आता है हर कहीं पर कि बस वो भगवान राम को वो जंगल में मिली और उन्होंने उनको ताड़ा और उन्होंने अपनी स्टोरी बताई कि क्या क्या था, बस। लेकिन अहाल्या की पूरी जर्नी जो दिखाई है वो सती सीरीज बाय कोरलदास गुप्ता ने बताई है। तो अगेन, अगर कोई मैथोलॉजिकल फिक्शन पढ़ना चाहता है तो इस बुक को भी जरूर पढ़े। और मेरे को ऐसा लगता है कि इस पूरे पॉडकास्ट में, इस पूरी वीडियो में ना, इतनी सारी बुक्स मैं रिकमेंड कर चुकी हूँ, ये मतलब जेन्युइनली आई विश, आई होप कि लोग इन बुक्स को पढ़ें। ठीक है, दीज बुक्स आर स्पेसिफिकली रिटन बाय इंडियन ऑथर्स। और जो लोगों को लगता है ना कि इंडियन ऑथर्स अच्छा नहीं लिखते हैं, भाई एक बार जो ऑथर्स मैंने कोट किए हैं ना इस वीडियो में, उनकी बुक्स पढ़ के देखना। जो आपका पर्सपेक्टिव है ना इंडियन ऑथर्स को लेकर कि ये तो अच्छी बुक लिख ही नहीं सकते हैं, वो यूं चेंज हो। And I think talking about mythological fiction and Indian mythology specifically, no one better than Indian authors can write it because they have grown up with them and they won't do injustice to their mythological epics. एग्जैक्टली तन्वी, अगर आज मैं भी लिखूंगी तो मैं अगर लिखती हूँ माइथोलॉजिकल फिक्शन पे कुछ भी, कोई रिटेलिंग, तो ऑफ कोर्स मेरे कॉन्स्टेंटली दिमाग में रहेगा, यार आई एम राइटिंग अबाउट माई गॉड। ठीक है, जिसकी बचपन से पूजा करी, जिसकी वजह से आई एग्जिस्ट। ठीक है, तो मैं इनजस्टिस कैसे कर सकती हूँ? तो इसीलिए इंडियन ऑथर्स ही हैं जो इंडियन माइथोलॉजी पे लिख सकते हैं अच्छे से। या So there is one last question before I go to my game. Okay, so we are going to have a game. Yeah. Oh God. And I'm sure Am I going to get something? I think not yet, but maybe. Maybe, yeah, maybe. So yeah, one last question Sure. before we wrap up. In one line, you have to tell why everyone should read mythological fiction once in their life. Because it will bring calmness to your chaos. Wow, lovely. Calmness to your chaos. That's amazing. So coming to my game, that is Okay. one interesting section of my podcast. हाँ, ये सबसे exciting बात है। And for you, I'll give you a hint and you have to tell who am I. Since we are talking about mythological fiction and being women, I have like been little biased and I have got the list with all the women characters. Okay. So the first one is, I was the queen of mighty kingdom and that was destroyed because of my husband who chose war. Who am I? मंदोदरी। Lovely. The second is, वेट, यहाँ पे ना मुझे 2 आंसर आ रहे थे। ठीक है, Okay. फर्स्ट वाज दुर्योधन्स वाइफ। okay. ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो भी सेम है, बट देन मुझे उनका नाम याद नहीं आया, so I quoted मंदोदरी। But there was that hint, mighty kingdom. She was the queen. Duryodhan's wife was never a queen. हाँ, you can say that. The second is, I was cursed to be a river. गंगा। Right. The third one is, I was born out of fire. द्रौपदी। पांचाली। Lovely. I think you have read a lot about all these women. I have, और मतलब तुम जो क्वेश्चंस पूछ रही हो ना, और जो हमारा ये पूरा डिस्कशन है, मुझे लगा यार पढ़ी तो यार बहुत You have सारी revised a चीजें। lot. मैं ऐसे नहीं है कि मैं हर महीने ही माइथोलॉजिकल फिक्शन पढ़ रही No, हूँ no. या While doing this podcast, you have had हाँ, a very good exactly, revision. पूरा रिवीजन हो चुका है मेरा। मेरे को ऐसा लगता है कि क्लासेस दे लेती हूँ, यहीं पैसे बना लेती हूँ, बात करूँ किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में। Teaching kids about the mythology. हाँ, एग्जैक्टली। Let's move to the fourth one. डेफिनेटली I was an adopted child and was treated as a princess. सीता, ऑफ कोर्स डूड, ऑफ कोर्स। ओके, I was once turned into a stone.
Ahalya. Okay, so this is the last one because you have been very good in answering. I don't have any tough questions, but I hope this is going to be a one. I was taken against my will to marriage in my Swayamvar. Shikhandi. Now wait. Okay, I know this is not the right answer, but she reborn as शिखंडी और उनका जो नाम था ना वो स्लिप हो रहा है. वो 3 बहनें थी और ऐसा समथिंग स्टोरी थी जिसको भीष्म जो थे वो लेकर आए थे अपने भाइयों के जो भतीजे थे उनकी उनसे शादी करवाने के लिए. ठीक है. और शिखंडी ही थी जो भीष्म की डेथ का रीजन बनी थी. ऑफ कोर्स. Yeah, the name was Amba. अम्बा. एग्जैक्टली. अम्बा, अंबालिक, अंबिका एंड अंबालिका. Yeah, तीन जो थी. या this was a fun discussion and I have enjoyed it a lot because I am brought up watching Mahabharata and Ramayana and I have watched them multiple times and now it's my time. Like I have been longing to read retellings, not exactly retellings, the POVs of the women in हाँ. the epics of Indian mythology. So this has been a very, very awesome conversation with you and I am in love with the way you are reading and you are talking about the books on your Instagram and letting other people choose their next read. Yeah, I genuinely want people to read books. The reason is Tanvi, books have saved me from droning. ठीक है. From giving up. लाइफ में ना इतनी बार इतनी चीजें हुई हैं मेरे साथ. माई लाइफ हैज बीन वेरी डिफिकल्ट. ठीक है. बहुत स्ट्रगल्स रहे हैं लेकिन अगर मैं गिव अप नहीं करी हूँ ना इट्स ओनली बिकॉज ऑफ बुक्स. ऑफ कोर्स देयर वर पीपल हु सपोर्टेड मी हु हेल्प मी. लेकिन अगेन बुक्स नहीं होती ना तो ये पॉडकास्ट नहीं हो रहा होता है. I can understand and resonate So with this you. is the reason मैं चाहती हूँ कि लोग बुक्स पढ़ें. उनको समझ आए कि यार जो चीज उन्हें दुनिया नहीं दे रही है ना वो ये किताबें Books दे can देंगी. give them. हाँ, that's it. This brings me to the end of the discussion. Before we go, Preeta, I would like you to share your experience of being on this podcast today. Tanvi, I'm honored. I'm so grateful that you gave me this opportunity, and I genuinely had fun having this conversation with you. मुझे नहीं पता था. मैं मतलब जब तुमने मुझे बोला था कि we are going to do this on retellings and on mythological fiction, I was like यार इतना तो मैंने नहीं पढ़ा है, इतना ज्ञान तो मुझ में नहीं है. And somewhere I was planning to ditch you. ठीक है. Oh my god, I did not expect this. ठीक है. And you know how blunt and how honest I am as a person. ठीक है. So that's why I'm telling you I was planning to ditch you. ठीक है. क्योंकि मेरे ऑफिस का काम था. ये मेरे पास सबसे अच्छा बहाना चल रहा है आजकल. कल मुझे कुछ नहीं करना होता है ना मेरा ऑफिस का काम है. मेरे पास एक्चुअली मेरा ऑफिस का काम है which I have postponed to have this conversation. क्योंकि ना मुझे कल रियलाइज हुआ कि यार एक तो पहला मैंने कमिटमेंट कर दी है. ठीक है. दूसरा मेरी दोस्त है. ठीक है. भाई किसी को भी डिच करो दोस्तों को तो डिच मत करो. Oh, ठीक है? lovely, lovely. मेरे जो दोस्त है ना मेरे लिए बहुत कुछ है यार. बहुत कुछ है. कोई भी है कैसा भी दोस्ती है मेरी उसके साथ. अगर मैंने दोस्त बोला है ना तो दोस्ती तो मैं निभाऊंगी. That's so lovely, Preeta, and I can vouch for your commitment because recently I saw you coming to one of my events and I felt very much overwhelmed. And that's so thoughtful of you, and I am thankful to you that you are here because I would have to cancel this month's podcast, but you saved me. And that's lovely to have you and you enjoyed it. That's all for this episode. Guys, do not forget to like, share and subscribe Tanvi's podcast and YouTube channel. Stay tuned for the next episode.